To talk to my people, my family, the YouTube family, is about relationships. It's a beautiful word. So, if I talk about the first relation that an individual has, is given by the God. That we take birth in certain family. So we have our parents, that are mother and father, and associated members of the family that we have been given by the God. But slowly and gradually, as we grow, we add more relations to our life depending upon the age group that we belong to. Suppose if we are a toddler, so the children or the toddler of our age in the family would be our friends or in the neighborhood. But as we go as a child, now as a kid, we tend to go to play school, so we develop certain friends there, as the ones who are our classmates. As we grow, then we have our teachers, that is again added to our, but it is not important that every individual that we meet in our life will end up making a relationship with us. Some may be a part of, just a part and parcel of the phase of the time that we have been associated to that an individual. But certain relationship or certain individuals impart an important footprint in our life that we carry for certain with us lifelong, or we want to sustain or live with that particular relationship. Could be any, could be a formal relationship, could be a personal relationship, could be a friendship, could be love, could be marriage, anything. But why we get to associate it with people, we need to figure that. We associate to certain people, we don't associate it to everyone around we meet, because we find some certain connection, a bond that we share in common between us, that one can understand certain things in a better way than other people around in our atmosphere, or say in a family or in a formal school, or what sort of places we are in, may not understand. But few are as those who do not need for us to elaborate or explain everything that we are going through or we want to say. That is, communication is very strong. And because I guess any relationship, any sustainability, any individual life is completely dependent of communication. But certain relationships that impart important footprint in our life, not necessarily would this be the same lifelong. Certain relationships are very beautiful, very happy, very warmth, everything in the very starting, but slowly and gradually we find certain changes. Changes that we don't like, changes that are not that we are looking forward to, changes that could bring negative impact on your life, changes that makes your life difficult, changes that makes your bond suffocating, and that is a red flag. So now the question here it is कि how to figure out कि ये रेड फ्लैग है या नहीं, या हमारे दिमाग की मिथ है, और क्या रेड फ्लैग सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होता है, या ये बाकी सारे रिलेशनशिप में होता है. आज हम इन सब पे बात करेंगे, इन सब पे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और हम इस सिचुएशन को कैसे पहचानें
समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहे. I'll share you all important points, and the last point that I'm going to share is the utmost best alarming points that we should not ignore, and that is the easiest way to figure out. So now let's start with the topic. We say red flag. The word itself is very negative. हम जिस इंसान से जुड़ते हैं ज़रूर कुछ कॉमन होता है या कुछ अच्छा लगता है उस सामने वाले के बारे में, जिस वजह से हम उसके साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना पाते हैं. वो एक कॉमन थॉट प्रोसेस हो सकता है, एक सिमिलर केयरिंग एटीट्यूड हो सकता है, या एक दूसरे को समझने की खूबसूरती हो सकती है. बट क्या ये हमेशा रहता है वैसा ही जैसा हमने शुरुआत में बनाया था? नहीं. सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, टाइम, पीपल कमिंग इन टू अ रिलेशन, उन सब चीज़ से चीज़ें और लोग बदलते हैं. बट जो कि हम उस रिलेशनशिप में ऑलरेडी इतने इन डेप्थ जा चुके होते हैं या इन्वॉल्व हो चुके हैं या इतने इनसिक्योर हो जाते हैं उस रिलेशन को लेके कि हम ये सारे रेड फ्लैग्स अगर हमें मिलते भी हैं तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं, और वो धीरे 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 हमें दीमक की तरह खोखला कर देता है. खोखला के कहने का सेंस ये है कि वो आपको शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से कमज़ोर कर देता है, और उसके बाद वो एक ऐसे गड्ढे में आपको दबा देता है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. आज के समय में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. नो, वी डोंट नीड टू. और ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप को तोड़ ही देना है. चीज़ें सुधर सकती हैं, बट इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट to acknowledge the individual कि yes, this is a red flag for you and I am not okay with it. आप जो मेरे साथ कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का एहसास है और ये इससे मैं खुश नहीं हूँ और मैं इसको लेकर आगे नहीं चल सकते. सो प्लीज़ बी अलर्ट एंड ट्राई टू चेंज. बट एक चीज़ है जो मेरे समझ से है कि नेचर और सिग्नेचर इंडिविजुअल का नहीं बदलता. इसका एक बहुत बेहतर और खूबसूरत सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी जो हम सब के लिए बहुत ही कॉमनली नोन है. फीमेल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप. उससे बहुत सारा चीज़ें. लेट्स टॉक अबाउट सेलिब्रिटी. सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय. एक समय था जब मूवी आई थी हम दिल दे चुके सनम, उन दोनों का रिश्ता उस समय एकदम बॉलीवुड के पीक न्यूज़ पे होता था कि द मोस्ट फेमस कपल, दे वर इन अ डेटिंग रिलेशनशिप. अब उसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ था वो पर्टिकुलर इंसिडेंट, बट एक पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है कि उन्होंने उन पर हाथ उठाया था एंड शी मूव्ड आउट ऑफ इट. भले उन्हें समय लगा, चीज़ें बिगड़ी, चीज़ें थोड़ा तमाशा बना, बिकॉज आप जब एक बहुत अच्छे पोस्ट पे या पोजीशन पे होते हो तो आप इस चीज़, आपके साथ बहुत लोग एसोसिएटेड होते हैं तो चीज़ें बिगड़ने संभलने में थोड़ा डिफरेंट होता है, जबकि आप अगर आपको एक कॉमन इंसान है. सो उनके साथ भी हुआ, लेकिन शी मूव्ड आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड शी इज़ लिविंग
a different relationship now. I hope, or I don't know, I don't want to comment about it that she's happy or she's not happy. At least she took a wisely decision to come out of it. एक ऐसी मूवी आई थी हमारे बीच में, थप्पड़, जहाँ पे तापसी पन्नू ने अपने हस्बैंड के फ्रस्ट्रेशन का वो बर्थडे, उनका कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन पार्टी था जिसमें उनको कोई हाइक मिलना था जो वो नहीं मिला था। आउट ऑफ दैट टेम्परामेंट दैट ही गॉट ओवर द कॉल, वो अपना एंशियसनेस, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उनको पता था कि ये ऐसा इंडिविजुअल है जहाँ पे अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो उसका कोई ऑपोजिट रिएक्शन नहीं आएगा। तो जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में women especially your wife is been treated as an unpaid labor, जिसकी ना कोई वेजेस होती है, ना जिसकी कोई रिटायरमेंट एज होती है, ना जिसकी कोई वेकेशन होती है, ना उसकी कोई CL PL कुछ नहीं होती। She end up doing job 24/7, 365 days, and that is a thankless job, especially for the women who are housewives. Please mark this point, housewife. So अगर आपको रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? रिस्पेक्ट। लव वही हो सकता है जहाँ आपका एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, और अगर नहीं है तो आप अलर्ट हो जाए। सो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया हाथ उठा के, एंड द पीपल अराउंड यू विल टेल यू कि ठीक है यार, वो फ्लैश ऑफ इमोशन में हो गया, ये ठीक नहीं है। अगर आपको कोई इज्जत नहीं देता, आप पे कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो आपको मार सकता है और उसका कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो इंसान आपका अपना नहीं हो सकता। हमें उसे पहचानने का और समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। जो इंसान आपके इमोशन को ना समझे, आप किसी परेशानी में या किसी चीज़, आप किसी इमोशनल रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप जनरली आपके इमोशन पे ही होता है, और सामने वाला इंसान, उसका एहसास नहीं है कि आप किस इमोशनल सिचुएशन में हैं, या अगर उसको एहसास भी है तो वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है। शुरुआत में उसने बहुत केयर किया, इसलिए आपके बीच में वो बॉन्ड डेवलप हुआ, बट धीरे 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 जब ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो आपको कैजुअली ले रहा है। आप सपोज करो आप किसी चीज़ को लेके बहुत सैड हो और सामने वाला इग्नोर कर रहा है। चलो कभी एक दो सिचुएशन में हो सकता है कि चलो ठीक है, उसका सिचुएशन वैसा था या उसका मूड ऐसा था या वट एवर इट इज़, बट अगर ये ऑन अ रिपीटेड वे में हो रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू बी देयर, मूव आउट ऑफ इट। थर्डली, अगर रिलेशनशिप के बीच में फिनेंसेस आ जाए तो रिलेशनशिप आगे लंबे समय तक नहीं चल सकता। It's very good that we work together, we grow together, we work hand in hand, और हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सामने वाला बहुत कोशिश कर रहा है, बट उस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ें तो समझ में आती है, इस चीज़ की भी समझ और एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को बूस्ट मिले कि वो अपना और चीज़ें बेहतर करके किसी तरीके से उस गैप को फिल कर सके। बट ज़रूरी नहीं है कि सबको इस चीज़ का एहसास हो।
और जब एहसास नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, और डिसअपॉइंटमेंट जहाँ आ गई तो धीरे 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 वो गैप इतना बढ़ जाता है कि आपके बीच में वो दूरियां कम नहीं हो पाती हैं। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट कि अगर आपके बीच में फिनेंशियल स्ट्रेस है तो दैट रिलेशनशिप इज़ अ रेड फ्लैग। ये सारे जो रेड फ्लैग्स हमने डिस्कस किया ये आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल हर जगह होते हैं। ज़रूरत है कि हम उसे पहचानें और हम उसे फिगर आउट करें और हम पॉइंट आउट करें कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए और हम इसको ऑल्टरनेट सोल्यूशन, ऑल्टरनेट एसोसिएशन ढूंढें। बिकॉज जब एक सेब सड़ जाता है तो वो पूरी टोकरी को सड़ा देता है। तो अगर वो रिलेशनशिप में इससे बदबू आ रही है तो कृपया बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी में नई खुशबू को लेकर आए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, किसी बेइज्जती की बात नहीं है, कि आपकी ज़िंदगी का बात है कि आपकी डिसीजन होनी चाहिए। बिकॉज ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको दिल से, अच्छे से, खुशी से और प्यार के साथ जिए। थैंक यू। सी यू अगेन with another topic on another video. Stay tuned। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।